Hello everyone, welcome to my YouTube channel Economics X. So guys, we will discuss national income. आज नेशनल इनकम में हम फर्स्ट नेशनल इनकम पढ़ेंगे, डोमेस्टिक इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट, फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी, रेजिडेंट वर्सेस सिटीजन. National income. What is national income? National income includes three important terms. First, factor income. Second, normal resident. Third, accounting year. Which means national income is the sum total factor income earned by normal resident of a country during an accounting year. What accounting year? Within a 1 year, that is 1st April to 31st March. What is factor income? Factor income received by factor of production. What factor of production? Here 4 factor of production. First, land, labor, capital and enterprise. In return for rendering productive services. जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो हमें इनकम रिसीव्ड होती है इन फॉर्म ऑफ रेंट, in form of wages, in form of interest, in form of profit, that is factor income. So what is factor income? Factor income is received by factor of production, land, labor, capital, enterprises in return for rendering productive services, rent, wages, interest and profit. लैंड के बिहाफ में हमें क्या मिलता है? रेंट. कैपिटल के बिहाफ में इंटरेस्ट, लेबर के बिहाफ में वेजेस, एंटरप्रेन्योरशिप के बिहाफ में प्रॉफिट. सो इसको क्या करते हैं? नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं. जितनी भी प्रोडक्टिव सर्विसेज हैं जो हमें रिसीव्ड हो रही है इन फॉर्म ऑफ इनकम, इन सब का टोटल जो किसके द्वारा जनरेट की गई हो? बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री. सो व्हाट इज नॉर्मल रेजिडेंट? Normal resident. A resident is defined as a person or institution. First, who ordinarily resides in a country. What ordinarily resides is talk about period of stay should be at least 1 year or more. Ordinary reside जो है वो बताता है कि कितना टाइम पीरियड इंडिया में रहा या किसी भी कंट्री में रहा जहां का वो रेजिडेंट है, या तो वो 1 ईयर या 1 से अधिक. सेकेंड, whose center of economic interest lie in that country. Center of economic interest, which means when he carry out all of his economic activity. What economic activity? Such as production, consumption, investment in that country. Second one, the resident lives or located within the economic territory. तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट बताता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो उस कंट्री में करता हो इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन, इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो व्हेन वी सम अप द नेशनल इनकम, सो नेशनल इनकम क्या हुआ? इट्स सम टोटल फैक्टर इनकम जो किसके द्वारा जनरेट किया है? बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री. चाहे वो इंडिया में जनरेट किया हो, चाहे वो इंडिया के बाहर से इनकम जनरेट किया हो, डजेंट मैटर. बट मैटर क्या करता है कि पर्सन शुड बी ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री. नॉर्मल रेजिडेंट में हम क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? फर्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO. ये हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ऑलरेडी NRI होती हैं. is treated like NRI. It's not part of resident of a country whether he situated in India or not. Employee of international organization, employees of international organization which means कि कोई foreign employee है जो वर्क करता है WHO में, और WHO कहाँ सिचुएटेड है? इंडिया में है, इसका ऑफिस सिचुएटेड है, तो वो भी हम नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं. फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स ये भी नहीं आता. फॉरेन स्टाफ लाइक दैट चाइनीज स्टाफ ऑफ चाइना एम्बेसी इन इंडिया. कोई चाइनीज स्टाफ है जो चाइना एम्बेसी है जो इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है, वहां वर्किंग है, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं. फिफ्थ, वर्कर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर. Citizen versus resident. Citizen versus resident, it's two different terms. Citizen, it's a legal concept and which is based on place of birth of the person. जहाँ पे किसी पर्सन का जो बर्थ प्लेस है वहां का वो सिटीजन हुआ, और लेकिन वही पर्सन किसी अदर कंट्री में रह रहा हो तो वो वहां का रेजिडेंट हुआ. सो सिटीजन, इट्स अ लीगल कॉन्सेप्ट एंड बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ
of the person, and same as resident is an economic concept which is based on economic activity. Example, an NRI is a citizen of India but resident of the country in which he lives. कोई NRI है जो सिटीजन हो सकता है इंडिया का, बट डजेंट मैटर कि वो रेजिडेंट भी इंडिया का हो, वो रेजिडेंट किसी अदर कंट्री का भी हो सकता है. एक जो पर्सन होता है वो सिटीजन भी हो सकता है और रेजिडेंट भी हो सकता है. सपोज हमारा बॉर्न प्लेस भी इंडिया है और हम यहाँ रह भी इंडिया में ही रहे, तो हम सिटीजनशिप भी हमारी इंडिया की हुई और हमारा जो रेजिडेंट है वो भी इंडिया का हुआ. लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बंदा सिटीजन किसी कंट्री का है उस कंट्री का वो रेजिडेंट भी हो. इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट नेसेसरली. Domestic income is the sum total factor income generated within domestic territory of a country during an accounting year, which means it's a total factor income. Total factor income जो कहाँ जनरेट किया है within a domestic territory of a country during an accounting year. नेशनल इनकम में हमने देखा था कि सम टोटल फैक्टर इनकम विच इज जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, चाहे वो इंडिया में जनरेट किया हो इनकम, चाहे इंडिया के बाहर किया हो, इट्स डजंट मैटर. इट्स मैटर इज कि पर्सन शुड बी ए नॉर्मल रेजिडेंट. बट डोमेस्टिक इनकम में इनकम जनरेट किया हो, चाहे वो इंडिया का बंदा हो चाहे इंडिया के बाहर का कोई फॉरनर हो, डजेंट मैटर, बट इनकम कहाँ जनरेट किया हो, विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी. What three terms we include? First, factor income. Second, domestic territory. Third, accounting year. Factor income we have already discussed. Accounting year, which means 1st April to 31st March. And what is domestic territory? We can see. Domestic territory, territory lying within the political border. Territory का मतलब होता है within geographical boundary. Second, ships, aircraft, etc. operated by resident of the country between two or more country. Suppose that कि कोई भी प्लेन है ऑपरेट किया जा रहा है किसके द्वारा, एयर इंडिया के द्वारा, बट किस कंट्री के, किसी टू कंट्री के बीच में, इंग्लैंड एंड यूएसए, तो इट्स पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी. सब सेम एज अगर कोई ब्रिटिश एयरवे है जो कहाँ ऑपरेट किया जा रहा है, बिटवीन इंडिया एंड जापान, सो इट्स पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंग्लैंड. Third, fishing vessels, oil and natural gas rigs and floating platform operated by resident of the country in the international water. कोई भी फिशिंग बोट्स है जो किसके द्वारा ऑपरेट की जा रही है, बाय इंडियन फिशरमैन इन द इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन, आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. Third, embassies, consulates and military bases, scientific stations, information and immigration office, aid agency, etc. of the country located abroad. इंडियन एम्बेसी है जो यूएसए में सेटल्ड है, चाइना में है, या किसी कनाडा में या जापान में है, या किसी अदर कंट्री में है, तो इट्स पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. सेम एज कोई फॉरेनर एम्बेसी है जो इंडिया में स्टेब्लिश्ड है, तो वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा. इट्स पार्ट ऑफ चाइनाज डोमेस्टिक टेरिटरी अगर चाइना एम्बेसी इंडिया के अंदर है. सो व्हाट वी एक्सक्लूड फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी, सम एग्जांपल, पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड कुछ पार्ट है जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड नहीं करते हैं. सपोज गूगल ऑफिस इन इंडिया, गूगल ऑफिस जो है वो इंडिया में स्टेब्लिश्ड है, इट्स पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी. ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, फॉरेन बैंक की जो ब्रांच है जो इंडिया में स्टेब्लिश्ड है, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी. सैमसंग ऑफिस इन इंडिया, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, कोई भी प्लेन ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. बट कौन सी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता है, एंड इंडियन कंपनी लोकेटेड एब्रोड, कोई भी इंडियन कंपनी है जो एब्रोड में लोकेटेड है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी बट इट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, बिकॉज जो इंडियन कंपनी है वो क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट है, बट लोकेटेड कहाँ है, वो एब्रॉड में. तो नॉर्मल नेशनल इनकम में हमने क्या पढ़ा था कि पर्सन शुड बी ए नॉर्मल रेजिडेंट वेदर ही जनरेटेड इनकम विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. Same as branch of SBI in London, it's not part of domestic territory, but it's part of national income. US Embassy in India, Office of WHO in India, planes operated by British between India and Britain. So it's not part of domestic territory, it's part of the British domestic territory.
What we not include in domestic territory? First, territorial enclaves such as embassies, consulates, aid agency of foreign government situated within geographical boundaries such as US Embassy in India, SBI branch in London. And international organizations होते हैं वो भी हम include नहीं करते हैं domestic territory में because it's already treated as NRI.